So see, for tomorrow there are two topics, that is Farm Bill 2020 and cryptocurrency. So what you have to specifically study in these topics, that is first is introduction, what is it? Second is, The first topic is cryptocurrency, second is farm bills, right? yes. Okay. So you have to understand these things. What is cryptocurrency? How does it work? Why government is prohibiting these things in our country? Why government has taken another view of CBDC in case of cryptocurrency itself? And second is why farm bill came and government has to take again that farm bill back. Means government has not implemented that farm bill after so much protest. So what was the reason for this? Getting this point. Okay. So what you have read the business standard of Friday. On Friday. Sir, Friday it was 30. That sorry, it was first. Yes, what was Uh, the news? on 31st, right? Yes, Sir, yes. the front page has the front page stated about an new Chennai-based startup Agniban, which has launched its own private satellite from India's first private suborbital, what we can say, launch pad. So it was world's, and also it used world's first 3D printed engine, and this was a new startup by the name of Agniban. Second is that the price of the containers has risen up to 300% because of Iran and Israel conflict, and also the route of Red Sea has also been disturbed because of Israel and Iran's conflict. Third is Google's parent company Alphabet uh, has established a new factory in Tamil Nadu by investing seven rupees to 7 trillion, and because of that employment is generated in Tamil Nadu, like approximately more than 3 million jobs has been generated. Sir, it was mentioned in the first page. And what was economic and public Sir, affairs? economic and public affairs, it was written about the foreign direct investment has been fell to a 5-year low. Like due to high rate in interest, the foreign direct investment has been reduced in our country, and Why it was reduce? also What is the reason? so because of increased rate in interest In which? and limited. Sir, in like overall increase, like for foreign direct investment, there is a particular rate of interest, so that was increased. That So rate the of interest increase where? Here or other country? here only in India only. So why they have not invested in our country? Sir, if the rate of interest is increased, then they will need more money on that Okay. terms to invest in India. Any other Yes, sir. news? And the second, sir, the second thing that I covered in from the public affairs page was India will be going to, it was predicted that India will be going to surpass the China's GDP in 2024 to 28. Like it will outpace China's GDP. So are you revising these things? What I have shared the PDF with you. Are you revising these Yes, things? yes. I have like yesterday from the start only I have revised everything, Yes, and yes, the things that yesterday you have. and tomorrow and daily you have to revise Yeah, yeah, from yeah. start. Yes, sir. I remember things like if you will ask me question, except the years, I will tell all about the concept. Except the year, somewhat I get confused between the years. Other than that, I remember everything, every concept, sir. Is it visible? Yes, sir. It is. Sir, So there you are was one thing I wanted to ask, sir. Why you refunded no, the no, amount? no. Please don't talk Okay, okay, all these things in this lecture. okay. We Sorry. will talk in other else. Okay. Okay. So this is Basel 3 norms. Here we stopped. Yeah. And so Basel committee is specifically made for the risk purpose. Is to Hmm. measure the risk, how much risk there in the banking sector, and how we can eliminate that thing. Getting this point. So Hmm. for that How purpose, one can Basel strengthen the made. banking sector?
Yes, Basel Group makes in 1974 with the central bank governors. There was a G10 countries, so they just sit together and decide one thing: कि how to regulate these things, what are the changes to be made. So that thing I am going to tell you in a very elaborate way going ahead. So there are series of amendment came, like Hmm. Basel 1 came, then what was the deficiency in the Basel 1? For that, Basel 2 came, then again Basel 3 came. So at present, our country and RBI is following Basel 3 norms. So there are some terms inside these norms. You have to remember those. First is credit risk, what you know. Second is market risk. Market risk means any movement in interest rate, currency rates, or any market fundamental move will affect your asset price. That is called market risk. Getting this point? Movement that affect the asset price. Yes. Suppose COVID came and economy downturns, so that is called market risk because of economy cycle. Our Hmm. asset is affected. Whole stock will go to the lower area. In that way, it comes. Means market का क्या risk है? Market के factor demand supply. Suppose anything you are selling, there is a huge demand in the Diwali Hmm. every year. But Hmm. in next year, suppose next year की दिवाली में कुछ भी सेल नहीं हुई है. So that is because of you have not analyzed that market factor that has affected your selling. So that is called market risk. किसी भी market के factor के कारण जो risk आ रहा है, that is market risk. Now third is upsee. This is a systematic risk कहा जाता है that impacts whole market like a recession. अगर recession आएगा तो COVID आया तो recession आया तो whole market affected रहता है उसमें. ये नहीं कि कोई एक बिजनेस बच जाएगा, ऐसा नहीं है. रिसेशन अफेक्ट एवरीवन. So operational risk, that is operational risk means suppose you have opened a shop and you are earning a revenue year on year. Previous year you have earned 1 trillion rupees, this year 1.5 trillion rupees. But next year due to some affection means your selling has not been a proper, your marketing strategy has not been in a proper way. Okay, your workers were not legitimate in that way, your product was not performing good, so due to that reason your operation get affected. Means buying selling of product, that can affect your revenue. Operation means what? Whatever the step has been taken, if they are affecting revenue, that comes under the operation. Getting this point? So that Yes, risk sir. are always as an operational risk. Employee errors, system failure, fraud, criminal activity, any event that disrupt business processes is called operational risk. So I think till now you are very much clear about these things. Hmm. So Yes. need for this, why we need a Basel 3? There are some reasons. That is the most important reason is India connect with the rest of the world, and Hmm. India banks are also going abroad. Getting this, and foreign banks are also coming to India. So one specific standard is needed for whole world banking sector. That is what Basel 3. If our Hmm. domestic bank is following that Basel 3 norms and banks goes to the foreign country, then they will accept easily because our bank is following that things what has been internationally following. Hitting this thing. They will not say, no, you have only followed RBI norms and we follow Basel norms. We will not accept you. They cannot say this thing. That's why they are becoming like this. Hmm. Secondly, Okay, sir. to maintain a low standard regulatory regime, this will put Indian banks at a disadvantage in global competition. What I have said means अगर ग्लोबली कोई बोल रहा है कि आपको अपना रिस्क कम से कम 10% तक रखना है, मीन्स इक्विटी प्लस रेवेन्यू हमारा जो प्रॉफिट है वो इतना होना चाहिए कि अगर डिपॉजिट में मतलब अगर लोन हमने जितनों को दिया है उन्होंने वापस नहीं भी किया
तो हम कुछ समय के लिए स्टैंड कर पाए कस्टमर के सामने जो डिपॉजिट लेना है। गेटिंग दिस पॉइंट। हम्म, तो इसलिए हमको एक सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, एक रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास, दैट इज कॉल्ड CRA, कैपिटल एडिकेशियो रिजर्व, CRAR बोलते हैं उसको, ठीक है। दिस विल कम लेटर ऑन, दिस हैज आल्सो बीन रिटन इन दिस PDF, सो यू विल सी दिस। उसमें क्या होता है, वो हम मिनिमम इसलिए मेंटेन करते हैं कि कितना भी क्राइसिस आए, हमारा बैंकिंग उतना एक्सट्रीम लेवल पे शॉक एब्जॉर्ब ना करे। गेटिंग दिस, डिसरप्ट हो जाएगा प्रोसेसेस चलते तो। रहेंगे। हाँ, शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए हम वो बैरियर परसेंटेज में रखते हैं, जो एट प्रेजेंट इंडिया में 9% है। गेटिंग दिस थिंग। सो 9%, अगर कोई भी बैंकिंग डिसरप्शन आता है कितना भी क्रिटिकल, तो 9% तक हम उसको बियर कर सकते हैं, इंडियन का बैंक। ये स्टैंडर्ड रेट है 9%। ये अभी स्टैंडर्ड रेट है। फिलहाल यस, इंडिया में। इसको CRAR बोलते हैं ना सर? हाँ, CRAR बोलते हैं। So the pillars for the Basel norms are, that is the capital adequacy, what I have told you, that capital adequacy हमको रखना पड़ता है। So capital adequacy हम find कैसे करते हैं? So capital adequacy का एक फॉर्मूला होता है, that is रिस्क Tier 1 प्लस Tier 2 कैपिटल का जो रेशियो है रिस्क वेटेड एसेट्स से। इसमें क्या आएगा? क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। तो इतने में बैंकों को जितना भी हो सकता है पहले वो अपना देखेंगे, दे विल एनालाइज द बैलेंस शीट ऑफ देमसेल्फ, ठीक है। फिर वो जो भी अमाउंट का रिस्क निकालेंगे, उसका 9% हमारा कम से कम ये कैपिटल होनी चाहिए, Tier 1 प्लस Tier 2 कैपिटल। सर ये RWA क्या है? रिस्क वेटेड एसेट्स। गेटिंग दिस थिंग, मतलब रिस्क कितना है उसको सीधा। हम्म, सपोज दिस इज कमिंग एज 100 रिस्क है, 100 रुपीज का, हम्म, और 9% अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, तो उसको 9 रुपए, 9 रुपीज एज अ Tier 1 प्लस Tier 2 कैपिटल रखना पड़ेगा बैंक को। ये हर बैंक के लिए एप्लीकेबल है। ठीक। अब यू विल आस्क व्हाट इज T1 एंड T2। सो T1, अंडर T1 व्हाट कम्स, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट में एक कॉलम होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो पहले ऑनर इन्फ्यूज करता है वहां, ठीक है। ऑनर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ इक्विटी लगाएगा पहले, तो उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डिस्क्लोज्ड रिजर्व। डिस्क्लोज्ड रिजर्व मीन्स व्हाट आर द प्रॉफिट्स, जो हमने पिछले साल कमाए हैं वो भी ऐड होगा। तो इस लेवल तक हम शॉक एब्जॉर्ब कर सकते हैं अंडर द T1, ठीक है। T2 में क्या होता है, दैट इज अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व। जैसे हम कोई एसेट का रिवैल्यूएशन करते हैं, वो अनडिस्क्लोज्ड रहता है हमेशा, तो ये हिडन है, बस हमारे पास इतना पैसा है, दैट मेक्स दिस सेंस। बट ये, पेपर पे नहीं है हिडन। हाँ, ये बैलेंस शीट पे दिख रहा है और इतना पैसा है, बट ये है लेकिन दिख नहीं रहा है। सर इसमें T2 में अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व के साथ इसका इक्विटी शेयर कैपिटल तो होगा ही, या फिर नो वो नो, दोनों का नॉट सेम इक्विटी होता है या कैपिटल। इक्विटी कैपिटल तो पूरा T1, सिर्फ T1 मीन्स फर्स्ट T1 बेस, में आ गया पहली ना? बार में जो एब्जॉर्ब हाँ तो करेगा। दोबारा नहीं आएगा ना, मतलब T2 में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ, दोबारा नहीं आएगा, उसमें तो आ गया ना इक्विटी प्लस डिस्क्लोज, अब जो अनडिस्क्लोज्ड है वो यहाँ आएगा T2। ठीक। सो बासेल के जो 3 पिलर हैं, पहला पिलर है कि आपको कुछ ना कुछ कैपिटल रखना है, जो 9% है इंडिया में। सेकेंड पिलर है कि सुपरवाइजरी रिव्यू, सुपरविजन करना है RBI को और बैंक को भी खुद की प्रोसेसेस का, खुद के ऑपरेशंस का, कि कैसे ऑपरेशन चल रहा है, मैनेजमेंट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कस्टमर कैसा फीडबैक दे रहे हैं, हमारा बैंक कर कैसे रहा है, ईयर ऑन ईयर बैलेंस शीट ग्रोथ कैसे हो रही है, दीज थिंग सुपरविजन करना हो। और सुपरविजन का मतलब ये भी होता है कि हम RBI के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नाउ थर्ड इज मार्केट डिसिप्लिन। सो अंडर मार्केट डिसिप्लिन मीन्स हमको उस वे में चलना है जहां मार्केट ले जा रही है। इफ कस्टमर आर वेरी मच कीन इन क्रेडिट कार्ड, तो हम क्रेडिट कार्ड इशू ज्यादा करेंगे। गेटिंग दिस थिंग।
बट उसमें भी केवाईसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा क्रेडिट कार्ड में। तो थ्री पिलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स, थ्री पिलर्स देयर आर what you have to remember, and they are implemented as on 2019 से अभी तक है वो। सो हियर यू कैन सी कि रिकमेंडेशन कमेटी का था कि आपको 8% रखना है इंटरनेशनली, बट आरबीआई ने बोला कि हम 8 नहीं 9% रखेंगे। दैट्स व्हाई इन इंडिया दिस इज 9%। गेटिंग दिस? मतलब आरबीआई थोड़ा 1% ऊपर से लेके चल रहा है कि भाई हम और ज्यादा रिस्क एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नाउ कैपिटल इज द मनी बैंक रिसीव्स of shares like tier 1 capital and tier 2, what I have told. Getting this? Yes, sir. Now we are here with negotiable instruments at 1881. So what are the negotiable instruments? Sir, Negotiable check. instruments, yes, वो होते हैं जो हम किसी को दे सकें, किसी पर्सन के नाम पे इशू कर सके, किसी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे इशू कर सके और वो पैसा उसको मिल जाए, उसका रिटर्न ऑर्डर होता है। गेटिंग दिस? फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ demand draft. You must have filled at least once in your life demand draft. Second is Yes. checks, and one thing is certificate of deposit. It is a possibility that you don't know this certificate of deposit. So of deposit is a money market instrument that is issued for the 7 day to 1 year minimum. आपने मिनिमम 1 लाख के लिए इशू होता है, तो आपके अगर अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं एंड यू गो टू योर बैंक एंड आस्क देम कि हमको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दो, they will issue that certificate of deposit for this 1 लाख रुपीज, Minimum issued for 1 lakh. मिनिमम 1 लाख रुपीज तब वो इशू करेगा, अदरवाइज उससे नीचे नहीं करेगा। और 7 दिन से 1 ईयर तक हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज अ ट्रेडेबल। So you have to remember these things. If anybody asks that what are the negotiable instruments, checks, demand drafts, certificate of deposit, or bills of exchange. So, Bills bills of of exchange, exchange. you know, Yes, sir. Bills of exchange. bills, not account receivable what you get. That is the bills. There is pay and pay. The one who Yes, receives. in the same. There is one pay. So anybody ask about this, please remember this act. This is just like an email, 1881. That is a negotiable instrument. Under the section 138, if you will dishonor a Dishonor check of is check. criminal offense. So you are from the Criminal. law background, you must have this idea. I know. Yes. So what is check? You must have seen check. चेक एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पहली चीज। अब चेक कई टाइप्स का होता है। पहला होता है इफ यू हैव चेक यू कैन ओपन योर चेक एंड बियरर चेक पहला होता है। व्हाट इज द बियरर चेक? बाय द नेम दिस इज द बियर, जिसके पास है, मीन्स यू हैव रिटन सम अमाउंट एंड रिटर्न दैट, यहाँ पे का नाम लिखना पड़ता है कि किसको दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ रहता है अमाउंट, कुछ कितना रुपए दे रहे हैं, यहाँ वर्ड्स में लिखना पड़ता है अमाउंट, और यहाँ सिग्नेचर। तो पे के नेम में इफ यू राइट पे टू द बियरर, यहाँ बियरर इफ यू राइट, ओके, Then anyone can sort this check. इवन इफ डॉग हैज दैट चेक एंड डॉग गोज टू द बैंक, पैसा डॉग को भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत। मतलब एनीबडी हु हैज हु बियर दैट। नाउ सेकेंड इज ऑर्डर चेक। यू विल राइट अ नेम, सपोज यू हैव रिटन अंकित, तो केवल ये अंकित को मिलेगा, राम श्याम कोई भी जाता उसको नहीं मिलेगा, केवल अंकित को मिलेगा पैसा। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर चेक। फिर आता है क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेक मीन्स यू हैव रिटन दैट ऊपर अंकित, 2 लाइन होता है. हाँ. you have written Ankit and just do this line, Double two line. line. Hmm. This means the
money will be paid only to the account of Ankit, not in cash they will give. Getting this? Yes, sir. हम केवल अकाउंट में पैसा देंगे, क्रॉस का मतलब होता है आपके हैंड में पैसा नहीं देंगे। और अगर ये नहीं होता तो आपको हैंड में पैसा मिल जाता। हम्म, सेल्फ चेक होता है एक, जो हम अपने खुद के नाम पे देते हैं। इफ यू विल डिपॉजिट द एनी कॉलेज फीस, देन मोस्टली व्हाट हम्म, दे विल डू दैट, वो एक नेफ्ट का फॉर्म भराएंगे और उसके पीछे एक सेल्फ चेक लगवाएंगे आपसे। हम्म, गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। सेल्फ चेक लगवाएंगे जिसमें टू पे टू द, आपका नाम लिखा होगा, इतनी अमाउंट जितनी कॉलेज को फीस देनी है, और वो अटैच कराएंगे इसमें। इसका मतलब ये होता है कि आपने वहां इतना विथड्रॉ किया और कॉलेज को भेज दिया। सेल्फ चेक। गेटिंग ना? हम्म, मतलब आपने पहले चेक दिया तो आपको पैसा हाथ में आया, फिर ये फॉर्म भरा तो कॉलेज को दे दिया हमने वापस से। हाँ, ठीक। नेक्स्ट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। तो चेक की वैलिडिटी जो रहती है वो 3 मंथ्स रहती है, प्लीज रिमेम्बर। हम्म, चेक केवल आज अगर लिखा गया है चेक को, तो केवल 3 मंथ्स तक वैलिड रहेगा। सर वो ऊपर जितने भी चेक के टाइप्स देखे सबके लिए ना? हम्म। पोस्ट डेटेड चेक मीन्स आज हम चेक को बना रहे हैं लेकिन वो फ्यूचर में कभी पेएबल होगा। उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स है, तो फ्यूचर में कभी पेएबल होगा। दैट इज अ पोस्ट डेटेड, नॉट टुडे। पोस्ट डेटेड। हम्म, दिस थिंग यू डोंट हैव टू रीड एक्चुअली। वन इज अ स्टेल चेक। अगर आप 3 मंथ्स के बाद जाते हो तो वो चेक कंसीडर नहीं किया जाएगा। इज नॉट ऑनर्ड बाय बैंक बिकॉज दैट हैज एक्सपायर्ड, दैट हैज बीन एक्सपायर्ड एक्चुअली। नेक्स्ट negotiable इंस्ट्रूमेंट इज डिमांड ड्राफ्ट। Demand draft means you go to the bank and you have some 25,000 in your account. You say to the bank that I want to draw a demand draft with respect to that university. You take that page and write the name of that university of 10,000 rupees. Then they will give you a slip after a stamp. हम्म, They will give you a slip of the same demand draft what you have filled. And please just consider this thing that that is not a single piece of paper. That is 10,000 rupees actually. If you will go and deposit that paper to your university, they will get 10,000 rupees in their account. हम्म। In that manner, demand draft works. So demand draft are usually order of payment from one bank to another. Sir, it means that Troy is always the bank and pay is Yes, the one to whom we are paying. yes. So why demand draft is different from check? Tell me. Sir, it is mostly for, I See, think it is check, for bigger amounts. no, check can be dishonored Hmm. because we have write the check and we don't know if that is amount in our account or not. Getting this? Hmm. Hmm. बट डिमांड ड्राफ्ट तभी इशू होगा जब उतना अकाउंट होगा आपके। पहले पैसे देने पड़ते हैं। मतलब जितना आपके अकाउंट में पैसा होगा इक्वल टू दैट उतने का अमाउंट और डिमांड। लेस देन दैट अमाउंट, डिमांड ड्राफ्ट इशू होता है। लेकिन चेक तो हम कैसे भी दे सकते हैं, हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए हम 2 लाख का चेक दे दें, बाउंस हो जाएगा वो। बट बाउंस। डिमांड ड्राफ्ट कैन नेवर बाउंस, क्योंकि पहले ही देख के इशू किया जाता है कि अकाउंट में है कितने। बैंक वाला इशू करता है, ठीक है। रीड दिस लाइन, रीड दिस लाइन, हम्म, दिस। हाँ। समझ गया सर। नेक्स्ट देयर इज अ चेक ट्रंकेशन सिस्टम। सो एक्चुअली पहले क्या होता था कि बैंक्स के पास चेक आते थे बहुत सारे। फिर पूरे दिन में जो चेक आया, जब बैंक क्लोज होने लगती थी तब एक वैन आती थी, उसमें सब चेक्स को नियरेस्ट क्लियरिंग हाउस पे भेजा जाता था, ठीक है, फिजिकल सेटलमेंट करने के लिए।
लेकिन अब क्या आया है कि चेक ट्रंकुएशन सिस्टम, जिसमें एक मशीन आती है, और यू मस्ट हैव सीन कि चेक के नीचे एक कोड रहता है, MICR कोड, यहाँ MICR, माइक्रो मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन। कैरेक्टर। ठीक है, हाँ वो वाला कोड रहता है, तो वो उस मशीन में रखते ही सब डेटा इंफॉर्मेशन कैच कर लेता है, और इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाती है। पहले टाइम लगता था, अब टाइम नहीं लगता है। दैट इज द डिफरेंस। पहले जैसे बैंक 10 बजे ओपन हुआ तो 10 बजे एक बंदा आया, चेक दिया, और कोई 5 बजे आ रहा है जब बैंक क्लोज होने वाली है, तब चेक दिया, तो दोनों के चेक एक साथ जाएंगे उसी वैन में, नियरेस्ट फिजिकल सेटलमेंट होने के लिए नियरेस्ट क्लीनिंग हाउस में पहले। लेकिन अब जब से ये सिस्टम आया है, तो हर बैंक में खुद का एक ऐसा मशीन होता है, वहां चेक डाला, ये कोड के थ्रू पूरी इंफॉर्मेशन ली, और ट्रांजेक्शन कर दिया विदाउट एनी डिले। सो दिस इज अ CTS, फास्टर क्लियरिंग ऑफ चेक। फिजिकल मूवमेंट इसमें नहीं होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड MICR लाइन ऑफ चेक के बेस पे होता है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि सेम डे हो सकता है, विद इन 24 आवर्स में सेटल हो सकता है चेक का अमाउंट। Now here we are with our next. So what are the negotiable instruments? You can tell me the name. डिमांड ड्राफ्ट, चेक्स, there is bills of exchange, there is अरे उसकी bills of exchange था, और एक चेक, डिमांड ड्राफ्ट, and there is one more sir, forget to mention. Certificate of deposit. हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। So here we are with a small finance bank, and small finance banks are very important for our country, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बनाए ही इसलिए गए हैं कि अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व कर सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। यस। एंड कौन सी कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उषा थोराट की कमेटी थी जिसने बोला था कि आप सेटअप करो दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड दीज आर द प्राइवेट बैंक्स बाय द वे। तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कि जैसे स्मॉल फाइनेंस, जैसे पेमेंट्स बैंक होते हैं, गेटिंग दिस, जैसे यू मस्ट हैव हर्ड एयरटेल पेमेंट बैंक। सो पहले कोई बैंक आती, जैसे पेमेंट बैंक आई, उसके लिए 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए भाई, आपको समझिए स्टेब्लिश करना है कोई पेमेंट बैंक। सो फॉर दैट थिंग 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए। अगर आपके पास इतना है तो आप पेमेंट बैंक स्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर पेमेंट बैंक जैसे कुछ साल चली, 4-5 साल चली, फिर चलने के बाद वो बनती स्मॉल फाइनेंस बैंक, जब उसकी कैपिटल हो जाती इतनी 200 करोड़। ठीक है, उसके बाद चलने के 5 साल बाद, जब उसकी कैपिटल बहुत ज्यादा हो जाए और मार्केट में लिस्टेड हो जाए, NPA उसका रिड्यूस हो जाए, मीन्स अगर नेट NPA उसका 1% हो जाए, तो दैट कम्स अंडर द कॉमर्शियल बैंक, यूनिवर्सल बैंक। वो बन जाता है यूनिवर्सल बैंक, मीन्स अब सब एक्टिविटी कैरी आउट कर सकता है। सर उसका एसेट साइज फिर 1000 CR से ऊपर होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही होगा, या 1000 CR से ऊपर। और गेटिंग सर दिस ये जो पॉइंट? स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मतलब इसका प्रोसेस ये है कि पेमेंट्स बैंक से कन्वर्ट होता है, या फिर डायरेक्टली अगर 200 CR इन्वेस्ट करके कोई ओपन डायरेक्टली भी करना है, चाहे? डायरेक्टली भी है। डायरेक्टली भी है। यस, but if payment bank want to become this universal, then they have to follow this process. ओके। सो प्रमोटर जो शुरू में स्टार्ट करते हैं, उनका 40% कंट्रीब्यूशन रहता है फर्स्ट 5 years में। यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये है, इसके लिए बनाई गई है, किसने रिकमेंड किया था, कितनी कैपिटल की जरूरत है, एंड प्रमोटर्स का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक। नाउ दे कैन नॉट सेट अप सब्सिडरी टू अंडरटेक NBFC सर्विसेज।
एनबीएफसी एक अलग से ही कंपनी होती है जो अदर देन आरबीआई वर्क करती है। वन कंपनीज वेरी एक्ट से इंपॉर्टेंट रेगुलेटेड। थिंग इज ये जो है पीएसएल, यू नो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पब्लिक सेक्टर, हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर में। हाँ। में 75% इनका वो रहता है। पहले नॉर्मल बैंकों में 40% रहता है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही बनाई गई है, दैट्स वाई 75% इसमें हम बोलते हैं। भाई आप कितना भी लोन दो, जैसे 100 रुपए लोन दे तो 75 रुपए ऐसे होने चाहिए जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर होने चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर। यू कैन नेम सम सेक्टर्स, व्हाट आर दोज? सर, देयर आर एमएसएमईज, मतलब enterprises, there is energy sector, education, agriculture, and then there is housing also. यस, यू आर राइट। सो हियर वी कम विथ पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाई गई है, ठीक है, जिसमें स्मॉल सेविंग अकाउंट हम बोलते हैं कि भाई आप रखो, वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। दिस थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, पेमेंट बैंक कभी भी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, दीज आर द पेमेंट बैंक। So who has recommended for this? That is a Nachiket More committee। और 100 करोड़ है आपके पास तो आप पेमेंट बैंक एस्टेब्लिश कर लो। 200 करोड़ है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक। Small finance bank। और जो लाइसेंस है इनका, वो आता है 22(1) ऑफ 1949 के अंदर। मतलब आरबीआई लाइसेंस देगा इनको चलाने के लिए। अगेन प्रोमोटर्स का 40% मिनिमम होना चाहिए फॉर 5 ईयर्स, उसमें 40% 5 ईयर्स के लिए। Okay। पेमेंट बैंक कैन ओपन स्मॉल सेविंग अकाउंट और डिपॉजिट 2 लाख रुपए तक एक्सेप्ट कर सकते हैं बस। गेटिंग दिस? हम्म। पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं बट नॉट क्रेडिट कार्ड। हम्म। सो हियर वी आर विथ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब जो आप देखते हो एनएससी, बीएससी, शेयर मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यू नो दीज थिंग्स। Somewhat time। ओके। सो फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार के हैं, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग लेस देन 1 ईयर देयर मेच्योरिटी इज मनी मार्केट। और अगर वही इंस्ट्रूमेंट है या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मेच्योरिटी 1 साल के बाद से शुरू होती है, हम्म। दैट इज कैपिटल मार्केट। So you have to remember these things like the treasury bills, commercial papers, certificate of deposit. These are money market. I have told you this 7 days से 1 year तक के लिए इशू किया जाता है, not more than हाँ। 1 year। More than 1 year। ये कॉमर्शियल पेपर 7 days से 1 year। ट्रेजरी बिल्स 3 टाइप्स में इशू किया जाता है, 91 डे, 182 डे एंड 364 डे। सर, ये सब नंबर्स भी याद करने रहेंगे, मतलब नाइट ट्रेजरी बिल्स 91, 182, यस, तीन ही टाइप के 364। ट्रेजरी बिल्स हैं। 91 दिन का आता है, 182 दिन का आता है, 364 का आता है। मतलब पूरा 1 ईयर का आएगा, या उससे आधा आएगा या उससे भी आधा आएगा, बस इसमें क्या है। ठीक है। What you ask one day, that is a call money, notice money, term money. So in call and notice money, what happens actually? Borrowers and lenders need to maintain a current account with RBI. Call money is for 1 day, notice money 2 to 14,
You हाँ have asked हाँ one day, na? हाँ 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 Term I money guess so. is for exceeding 14 More days. than 14 days. Now treasury bills. This is wrong. So minimum account at present is 10,000 rupees. So these are issued in three format, that is 91, 182 and 91, 360. 182, 364. These are issued only by the central government. This is not state. There is a written, there are no treasury bills by state. It is written. Issued. And treasury bills are always issued at a discount and redeemed at par. That means अगर 100 रुपीज का ट्रेजरी बिल्स है और वो 2% इंटरेस्ट रेट दे रहा है आप, ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि 2 रुपए तो आपको पहले मिल जाएंगे, मीन्स यू कैन बाय दिस बिल इन 98 रुपीज। आपने 98 रुपीज अभी लगाए और 91 डे के बाद आपको 100 रुपीज मिल गए, तो दो कितना आपको फायदा हुआ? 2 रुपए का फायदा हुआ। 2%. हाँ दो. So that is called issued at discount, redeemed at par। 100 रुपए की मतलब कोई चीज डिस्काउंट है, के टाइम पे इशू हो. यस, किसी की फेस वैल्यू 100 रुपए है, पहले तो हमने उसको 98 रुपए दिए तो हमारे पास आ गया, फिर मेच्योरिटी में हमने जितनी फेस वैल्यू उतना दे दिया, 100 रुपीज, वो हमको दिया। गेटिंग दिस? 98 में हमारे पास आया और 100 रुपए में हमने उसको दिया, 2 रुपए का फायदा। नाउ व्हाट इज अ कॉमर्शियल पेपर? सो कॉमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब अगर आप इसमें कॉर्पोरेट को इश्यू करता है और वो डिफॉल्ट कर दिया तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। गेटिंग दिस? इसलिए इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है मनी मार्केट से, तब ट्रेजरी बिल्स की अपेक्षा। तो कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करती है, और प्राइमरी डीलर्स इशू करते हैं। सो फॉर प्राइमरी डीलर्स वी विल रीड टुमारो, एंड यू कैन सी हियर दैट ये भी कूपन पेमेंट बिलो द फंक्शन ऑफ जीरो कूपन पेमेंट, मीन्स कूपन पेमेंट इशू किए जाते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स के लाइक डिस्काउंट पे। गेटिंग दिस थिंग? ये जो मिनिमम है वो 5 लाख का इशू किया जाता है, उसका मल्टीपल मीन्स 5, 10, 15, 20 इतने का इशू किए करेंगे। सर ये कूपन होता क्या है? मतलब नो कूपन पेमेंट. कूपन पेमेंट होती है मतलब 6% कूपन रेट है, अगर 100 रुपए के बॉन्ड में तो 6 रुपए आपको मिलेगा, दैट इज कूपन पेमेंट। सो आई थिंक फॉर दिस there are some terms here we will discuss tomorrow. For this time has been over and we will stop here. So till now these things are very much clear for you, isn't it? Yes. Thank you for Thank you. joining today. Thank you very much. Okay.